Okay, so next one is what is e-business architecture and what technological innovations have had a major impact on it. So guys, any e-business architecture can be either like a two-tier or a three-tier, and earlier it was even one-tier. So generally the most prominent architectures are three-tier in nature. So the so these three-tier are what? They have database layer, then they have application layer, and on top of that they have presentation layer. Okay, so this is also known as data layer, this is known as logic layer or business logic layer, and this is known as client layer. Okay, so this is a typical three-tier architecture which is used in e-business. So earlier it was three-tier. So earlier it was two-tier. So two-tier means client and server. So two-tier does not distinguish between presentation layer and business layer. Okay, so as we move from two-tier to three-tier, as we move from two-tier to three tiers, so we get benefits of faster deployment, scalability, then reliability, and better security also, as number of layers are increased. So what are some of the innovations which are being done? What are some of the innovations which are being done, which are impacting this entire architecture? So those innovations are your cloud computing, which is making distributed computing even more easier. Then we have edge computing, and you definitely should read about them. Then you should know what is DevOps, and then you should know what is agile development, then AI, then what is microservices or SOA. So these are some of the factors which have got impact on, some of the drivers rather, which have got impact on e-business architecture. Next one, what are the four pillars of e-governance? So guys, four pillars of e-governance are people, process, technology, and resources. Okay. By the way, more than 65% e-governance, more than 60% e-governance products fail. और क्यों fail होते हैं? The fundamental reason is people, because there are issues in change management. तो सरकार किसी भी डिपार्टमेंट में नया सॉफ्टवेयर लगा देती है, but people are not used to that change. So there are issues of change management, and people are majorly responsible for it. Process, technology, resources सब manage हो जाता है, लेकिन the biggest reason of failure of e-governance project is people only. And also mind this figure कि more than 50-60% e-governance projects do fail. सरकार में ऐसा होता है. Okay. Next thing is what are the various type of interactions in typical e-governance project? ये तुम लोग लिख सकते हो. Government to government, government to customer, या government to consumer, not customer, government to consumer, government to business, government to employees. ठीक है, again, and you can also give इसके कुछ एग्जांपल भी दे सकते हो. If there is application in which there is interaction happening between government of Maharashtra and government of Bihar, it is government to government. अगर आप लोग अपना आधार कार्ड डाउनलोड करते हो, it is government to consumer. अगर कोई बिजनेस अपना जीएसटी क्या रिटर्न फाइल करता है, दैट इज गवर्नमेंट टू बिजनेस. गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, अगर सरकारी लोग अपना कुछ लीव अप्लाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, दैट इज गवर्नमेंट टू. So you can give these examples, very easy question. So four pillars and different type of interactions which are happening in the e-governance. Next one, discuss the Indian government efforts and actions towards implementing e-governance. अब guys, e-governance की कहानी तुम्हें थोड़ा समझना होगा. So e-governance का एक फंडामेंटल माइलस्टोन था 2006 में. So 2006 में क्या हुआ? NEGP आया. NEGP क्या था?
नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है। सो कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम ही आया था, जिसमें 27 MMP आए। MMP क्या है, आई डोंट रिमेम्बर फुल फॉर्म, देख लेना, मेगा समथिंग प्रोजेक्ट देख लेना बस। 27 MMP आए, ठीक है। और इसमें स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क था, कस्टमर सर्विस सेंटर भी थे, फिर इसमें स्टेट डेवलपमेंट सेंटर थे। इसके अलावा इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बने। इसके अलावा इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुछ कुछ किया गया, ठीक है। फिर उसके अलावा अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन वाज पार्ट ऑफ दिस। देन अनदर पिलर वाज असेसमेंट, ठीक है। और फिर इसमें बड़े सारे ऐसे 2006 में बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे जो इसमें थे, विच वर रिलेटेड टू बैंकिंग या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का MCA था। ये कुछ एग्जांपल तुम्हें याद करने होंगे। आधार भी इसी टाइम था। देन इनकम टैक्स, जिसके लिए आज तक इन्फोसिस वाले जूझते रहते हैं विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देन पासपोर्ट, ई ऑफिस, तो ये सब बड़ा अच्छे से, इवन पेंशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब 2006 में हुआ। फिर मोदी जी की सरकार आ गई, तो उन्होंने क्या किया, इसको सबसे पहले रीनेम कर दिया, एंड इट वाज नेम्ड एज 2015 डिजिटल इंडिया। सो डिजिटल इंडिया में 3 विजन एरियाज हैं। उसके बाद इसमें देवर 9 पिलर्स। तो ये तुम्हें याद होने चाहिए, 2-3 तुम्हें बता देता हूं मैं। वन वाज यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, ठीक है। देन अनदर वाज ई क्रांति, डिजिटल सर्विसेज। देन इट वाज अबाउट accessibility of broadband to all, then electronics manufacturing, ठीक है। ऐसे 9 एरियाज थे, जस्ट डू रीड देम। सो उसके बाद डिजिटल इंडिया में ये सब चीजें हुआ, 9 पिलर वाला पूरा प्लान है, विच इज अंडरगोइंग इवन टुडे। फिर तुम्हें कुछ अच्छे सरकार के प्रोजेक्ट्स के नाम याद होने चाहिए ई गवर्नेंस का आंसर एक अच्छा आंसर बनाने के लिए। तो मैं कुछ तुम्हें बता देता हूँ। माई गव, जो बिल्कुल वेरी वेल नोन है। डिजी लॉकर, उसके बाद तुम्हारा पूरा आधार, उसके बाद दर्पण, थोड़ा देख ले, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, स्वयं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। फिर जीवन प्रमाण, ताकि आदमी को हर साल नहीं बताना पड़े कि मैं जिंदा हूं पेंशन लेने के लिए, ठीक है। तो ऐसे 8-10 अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के नाम भी तुम लोग याद कर लेना, ताकि ई गवर्नेंस का कोई भी सवाल आता है तो। और बाकी जो इनकम टैक्स है, या मतलब बाकी बाकी भी काफी सारे पोर्टल्स हैं जो एक ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेके है, OR ASAP, ऐसा ही, मतलब ऐसा ही कुछ नाम है उसका। फिर ई ऑफिस, ठीक है। देन DBT पोर्टल, कितने तुम लिख सकते हो। सो दिस द एंटायर स्टोरी की सरकार ने ई गवर्नेंस के लिए पिछले 10-20 साल में क्या किया है। लेट्स कम टू सेकंड part 3B and question 1, which is on linear programming. So this is a linear programming problem on minimization, ठीक है गाइज। इसे भी एक नई बात है जो कि यूजुअली लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं होती है। ऑब्वियसली वी हैव टू डू इट ग्राफिकली। सो आपको पेपर में ग्राफ पेपर भी मिलेगा, तो हम भी आपको ग्राफ पेपर दे देते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है। इस पे हम लोग करेंगे। सो लेट मी राइट डाउन द प्रॉब्लम फर्स्ट। द प्रॉब्लम इज, वहां से कॉपी पेस्ट है पिछले वाली स्लाइड से, ठीक है। दैट वी हैव टू मिनिमाइज 5x1 plus 6x2. Okay, it is subject to some constraints, and these constraints are x1 plus x2 is equal to 1000, ठीक है। x1 is less than equal to 300 and x2 is greater than equal to 150. so guys, इनको हम लोग बोलते हैं constraints। तुम्हें एग्जाम में लिखना है ये, ठीक है। then x1 x2 are greater than equal to 0, इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये चीजें दी है हम लोगों ने, एग्जैक्टली सेम चीज हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ग्राफ पेपर तुम्हें पेपर में मिलेगा जैसे हम लोगों को मिला हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी प्लॉट एवरीथिंग ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है।
सो मैं अपने एक्स और वाई एक्सिस में बना लेता हूं. सो दिस बिकम्स माय वाई एक्सिस एंड दिस बिकम्स माय एक्स एक्सिस. ठीक है. सो एक्स एक्सिस पे आई एम प्लॉटिंग x1, वाई एक्सिस पे आई एम प्लॉटिंग y1. सो गाइस लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल हम लोग करते कैसे हैं? सबसे पहले हम जो एरिया डिफाइंड है उसका हम ग्राफ करते हैं. सो इफ आई लुक एट दिस कंडीशन, ये वाला एक, इसका मतलब है x1 x2 ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है. अब लेट अस लुक एट कांस्टेंट नंबर 2. 2 को मैं ग्रीन में लिख लेता हूं. x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150. यहाँ मैंने छोटा सा गलती कर दिया, ये y1 नहीं है, ये x2 है. x2. ठीक है. ओके. सो कमिंग बैक, x2 इज ग्रेटर देन 150. दिस इज x2. ठीक है. सो x2 इज ग्रेटर देन 150 एंड 300 तो मैं 100 के ले लेता हूं. चलो ठीक है. सो मे बी कितना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करना है. चलो ऐसा कर लेते हैं. सो दिस इज 50, दिस इज 100, दिस इज 150, दिस इज 200. यहां भी ऐसा ही कर लेते हैं. 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350. ठीक है. सो ग्रीन में हम लोगों को जो दिया कंडीशन विच इज व्हाट, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150. इसका मतलब 150 जहां है, 150 जहां है, एक्चुअली काफी ना छोटा एरिया बन जाएगा. सो लेट मी थोड़ा छोटा स्केल ले लेता हूं. मैं ग्राफ पे तुम लोगों को ठीक से दिखाई नहीं देगा. सो मे बी व्हाट आई विल डू guys, maybe what I'll do, I'll just rewrite it. So I'll make it 100, 200, 300 and 400, 500, so on. So 100, then 200, then 300 and 400. अब ठीक है. ठीक है. So my x2 is greater than 150 which is in green. So ये मेरा बन जाएगा x2 is equal to 150 की लाइन. लेकिन मुझे चाहिए x2 is greater than 150, मतलब इसके ऊपर वाला एरिया. Okay, cool. Let me go to next constant, which is x1 is less than 300. So x1 less than कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है, blue color guys. That is beauty of online teaching, different colors. But is less than this, तो मेरा ये वाला एरिया बन जाएगा. ठीक है. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, तो अब तक मैंने ये वाला एरिया आ गया. अब हम आते हैं तीसरे कॉन्स्टेंट पे, विच इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1000. अब गाइज ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब की बार एक ऐसा सवाल है जिसमें ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, इक्वल टू दिया हुआ है. ठीक है. सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1000 की लाइन कैसे होगी? यहां भी 1000 पे क्रॉस करेगी और यहां भी 1000 पे क्रॉस करेगी. सो मे बी आई विल डू इट कि ये मेरी लाइन बन गई. सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स कंडीशन नंबर 3 विच इज x1 plus x2 is equal to 1000. ठीक है. नेक्स्ट थिंग विच वी डू इज वी फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस. फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस क्या होता है कि जो इन सारी कंडीशंस को मीट करता है. व्हाट इज दैट एरिया? अब गाइस इस वाले सवाल में क्या नई बात है कि बिकॉज x1 इक्वल टू x2 और इक्वल टू का साइन दिया है, तो इसका मतलब मेरे जो सारे फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के पॉइंट होंगे दे विल लाई ओनली ऑन दिस लाइन. So I won't get an area. I'll just get a line. So therefore my feasible solution space कौन सा होगा? जो तीनों को मीट करता है. So my feasible solution space will be this line, this portion of this line. बस. There is no area which I have to represent. So this which is highlighted, this will give me the. So this will give me. इसको लिख लेते हैं. So this will give me this will give me my feasible, और इसको लिखना है पेपर में, नंबर लेने हैं तो, solution space. ठीक है. अब लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली हम कैसे करते हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के हम एक्सट्रीम पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं. अब इसमें एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं? एक्सट्रीम पॉइंट है मेरा एक ये वाला और दूसरा है ये वाला. अब इन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 300 और 700, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका है 0 और
1000। तो मेरे दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। अब 300-700 कैसे आया कि जो लाल वाली लाइन है और जो ब्लू वाली लाइन है उसको सोल्व कर लो, ग्राफिक उसको एल्जेब्रिकली तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये जो पॉइंट्स आए वो कौन कौन से आए, एक पॉइंट आया मेरा 300 और 700 और दूसरा पॉइंट आया मेरा 0 और 1000। इन दोनों पॉइंट पे मैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूं। सो मतलब इन दोनों पॉइंट को इस वाले इक्वेशन हम लोग पुट कर लेते हैं। सो फॉर 300-700 माय वैल्यू कम्स आउट टू बी 5700। फॉर 0 and 1000 माय वैल्यू कम्स आउट टू बी 6000। मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो मिनिमम वैल्यू इज 5700। देयरफॉर the optimal solution of this linear programming problem is what? It is 5700 at what point? At x1 is equal to 300 and x2 is equal to 700. This becomes my solution of linear programming problem. Next one, आगे बढ़ते हैं। A certain drug is claimed to be effective in curing cold. In an experiment of 500 people suffering from cold, half of them were given the drug and other half were given the sugar pills. Patient reaction to treatment table. On the basis of above data, can it be concluded that there is a significant difference in effect of drug and sugar pills? Okay, so guys, chi-square का सवाल है ये, ठीक है। तो हम दो कैसे करते हैं, पहले ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालते हैं और फिर हम अपना सवाल को हम सोल्व करते हैं। सो सबसे पहले मैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों को दिया हुआ है 150, 130, 280, ये टेबल सामने दिया हुआ है ऑब्जर्व्ड वाला, ठीक है। एंड this total 200 plus 70 is 350 plus 1 plus 150. So this total becomes, this is 500, this becomes 250, this becomes 250. तो ये मेरा बन गया observed frequency table, ठीक है। ओके, अब मुझे व्हाट डू आई नीड माय नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो पहले मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिख लेता हूं, उसको H1 या HA जो भी तुम्हारा मन करे वो तुम लिख सकते हो। सो माय अल्टरनेट हाइपोथेसिस व्हाट, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द इफेक्ट ऑफ ड्रग, राइट। सो आई विल राइट अल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट यस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, पूरा लिख लेना इसको। सो माय नल हाइपोथेसिस विल बिकम देयर इज no significance difference. So null और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिख लिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना रो है, रो मेरी 2 है, कॉलम कितना है 3 है। सो माय डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 minus 1, 2 minus 1 which becomes 2, ठीक है। we'll use what, we'll use chi-square, goodness of fit first, cool. सो अब मैं अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसको हम इसको बोलते हैं हाइपोथेसाइज्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब ये वाली टेबल हम लोग बना लेते हैं। सो I'll write drug, I'll write sugar, I'll write helped, I'll write harmed या नो इफेक्ट और बाद में इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। सो गाइज अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग। सो दिस इज 280, दिस इज 500। सो 280 डिवाइड बाय 500 इनटू 250, आधा 250 इसका वैल्यू है। सो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 140। So this is 140. Similarly, 70 divided by 500 into 250. So this comes out to be 35. Similarly, तुम लोग बाकी भी निकाल लेना, 75, 75, 35 and 140. सम भी कर सकते हो यहाँ। So this will become 280. This will become 70. This will become 150.
this will become 200, this will become, sorry, no, 250 आधे आधे हैं दोनों, and total is 500. So this becomes my expected frequency table. मुझे क्या निकालना है? मुझे chi square statistic निकालना है, which is given by which is given by observed frequency. Let me, okay, which is given by, yes, which is given by observed frequency minus expected frequency divided by expected frequency. इसको हम स्क्वायर करते हैं, सारी वैल्यूज का समेशन निकाल लेते हैं. अब गाइस इसी चीज को निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल नीड सम स्पेस, सो मे बी आई विल डू इट हियर. ठीक है, so my observed frequency, then expected, then I need numerator जो कि o e माइनस स्क्वायर, और फिर मैं निकाल लूंगा o माइनस e का स्क्वायर डिवाइड बाई e, और इसको हम फिर जोड़ देंगे. सो 150, 130, 30, 40, 70, 80, 140, 140, 35, 35, 75 एंड 75. ओ माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 100, 100, 25, 25, 25, 25. इसको ई से डिवाइड करेंगे 0.714, 0.714, 0.714, 0.714, 0.333 एंड 0.333. इसको सम कर देंगे, दिस कम्स आउट टू बी 3.522. ठीक है, उसके बाद गाइस हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपना सो दिस बिकम्स माय व्हाट, दिस बिकम्स माय this becomes my calculated value of chi square. So this 3.522 is my calculated value of chi square. मुझे क्या निकालनी है, पहले क्रिटिकल वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ. क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने निकाला यहाँ 2 है. ठीक है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, इस वाले सवाल में दिया नहीं है. सो लेट अस अज्यूम माय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू बी 0.05. so 0.05 मैंने अज्यूम कर लिया. so I'll go to my chi square table for 0.05 for 2 degree of freedom. my critical value is 5.99. टेबल तुम लोगों को दिया हुआ है पेपर में भी. I'll show, no, let's keep it this way only. Okay, let me show you the paper actually. So this is the paper, और इस वाले पेपर में तुम chi square table दिया होना चाहिए, right? हाँ, this is the chi square table. ठीक है, so for just give me a second guys. Yes, so for 0.05 degree of freedom 2 अगर तुम देखोगे, so this is their value 5.99. So अभी तक हम लोगों ने क्या निकाल लिया, अभी तक what we have understood that my critical value of my critical value of chi square is what, 5.99. critical value is 5.99. ठीक है, और my calculated value कितना है, calculated value is 3.522. because my critical value is because my calculated value is less than critical value. I'll repeat again, because my calculated value is less than critical value, therefore we, what is our decision, we do not reject null hypothesis. We do not reject null hypothesis. This is my decision. Thus there is no significance difference. So what we can conclude, we can conclude that there is no significant difference in the effect of sugar pill and drug pill. Once again, because we have rejected the null hypothesis, we conclude that there is no significance difference between the effect of drug pill and sugar pill. Of course guys, नंबर लेने के लिए एग्जाम में ये वाला डायग्राम जो chi square वाला होता है आपको बनाना है. So this becomes my rather मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर दिया इसको. लेट मी मेक इट करेक्ट. सो chi square का इट इज लाइक दिस. ठीक है, एंड इस वाले में
my okay, so my calculated value is 3.522, but my critical value is 5.99. So because my calculated value is less than critical value, that is the reason why I rejected, I did not reject null hypothesis, because the area of rejection, is this one. This is the area of rejection. लेकिन हमारा तो कैलकुलेट इससे बाहर है, therefore we did not reject it. Okay, great. So chi-square question done. Let's move on to next one, which is apply the concept of decay of new product ideas to innovative product. So it's a more of a marketing question. वैसे पता नहीं ऑपरेशन मैनेजमेंट ने क्यों दे दिया है इसको, but ठीक है, कोई बात नहीं. So guys, what are the steps of new product development? The steps starts with idea generation. फिर हम क्या करते हैं? We do स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वी डू बिजनेस एनालिसिस. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वी डू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. फिर उसके बाद हम करते हैं टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद हम करते हैं कमर्शियलाइजेशन, और कमर्शियलाइजेशन के भी है गोट अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट. So these are the stages of new product development. Now what is the concept of decay of new product ideas? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपना y एक्सिस पे मैं अपने प्लॉट करता हूं नंबर ऑफ आइडियाज, और मैं x एक्सिस पे मैं प्लॉट करता हूं क्यूमुलेटिव परसेंटेज, ठीक है, तो मेरा जो कर्व है वो बनता है ऐसा. तो इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज ऑफ आइडियाज, so this gives percentage of product ideas that will remain with each stage of new product development. मतलब क्या हुआ कि अगर आइडिया स्क्रीनिंग पे मेरे पास 100 आइडियाज थे, सॉरी आइडिया जनरेशन पे 100 आइडिया थे, तो स्क्रीनिंग तक शायद वो 60 रह जाएंगे, बिजनेस एनालिटिक्स तक वो 40 रह जाएंगे, डेवलपमेंट तक शायद वो 15 रह जाएंगे, टेस्टिंग तक शायद वो 3 रह जाएंगे, कमर्शियलाइजेशन तक शायद 2 रह जाएंगे, और फाइनली सक्सेसफुल प्रोडक्ट शायद 1 होगा. तो 100 में से शायद 1 प्रोडक्ट होगा जो फाइनली सक्सेसफुल होगा. सो द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज दैट विल रिमेन विद ईच स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, these are given by decay curve of new product ideas. Okay, let's come to now next question, which is on statistical quality control. Okay, so what is given? It is given that a manufacturing company uses a sample size of 10. The data from past 10 sample is given. So 150 डिफेक्ट आए हैं, टोटल हमने 1000 यूनिट सैंपल किया है. The system is operating under normal condition, ठीक है. Construct a control chart with control limit such that measurement for 95% of unit under normal condition would fall within control limit. So guys, सबसे पहले हमें क्या है? हमें number of defects दिया है. Because number of defects दिया है, तो what do we need? We need to use defects per group chart. पहले अपना चार्ट आइडेंटिफाई करना है कौन सा हम यूज करेंगे, ठीक है. So this chart is also known as C chart. C chart is also known as defects per group chart. So for this we calculate our mean. So total हमने कितने यूनिट सैंपल किए? 1000, और कितने डिफेक्टिव निकले? 150. So this value is 0.15. So now we have got these values. I'll calculate my control limits. So my control limit is given by C, which is 0.15. फिर मैं निकालता हूं अपर कंट्रोल लिमिट. सो अपर कंट्रोल लिमिट इज गिवन बाय C प्लस, ये फॉर्मूला हम सबको याद होना चाहिए, ZC. अब Z का वैल्यू कहां से आएगा? बिकॉज I want to be 95% sure, so Z value for 95% confidence interval is 1.96. So coming back, it becomes 0.15 plus 1.96, 0.15. So this value becomes 0.91. लो जी, let's calculate lower control limit. अपर निकाल लिया, लोअर भी निकाल लेते हैं, C dash minus ZC. So this value will come, अगर वैल्यू पुट करोगे this will come in negative. नेगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं, so we take it to be 0. ठीक है. So guys, अब मेरा कंट्रोल लिमिट आ गया है.
ठीक है, और नाउ आई कैन मेक माई चार्ट, I'll make my chart. So logi, so this is my control limit, this is upper control limit, this is lower control limit. So lower control limit है मेरा 0, control limit है मेरा 0.15 और मेरा upper control limit है 0.91 जो मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद सपोज द नंबर ऑफ यूनिट डिफेक्टिव इन नेक्स्ट 5 सैंपल इज गिवन 3420, इसको ग्राफिकली पुट अप करो एंड फाइंड आउट वेदर प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। सो गाइस आपने पहला ऑब्जर्वेशन में 3 डिफेक्ट आए और मैं कितना, मेरा सैंपल कितने का था वो यहाँ दिया हुआ है, साइज ऑफ 10, ठीक है। इसका मतलब डिफेक्ट कितने हुए 0.3। सो मैं 0.3 को प्लॉट कर लेता हूँ। 0.3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। 0.4 यहाँ होगा। 0.2 यहाँ होगा। 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। और 0.7 कहाँ होगा, समवेयर शायद यहाँ होगा, ठीक है। सो ये मेरा चार्ट है। बिकॉज माई ऑल वैल्यूज आर within upper control limit and lower control limit, therefore yes, I can say that yes, my process is under control. Done. Yes, the process is under control.